Hi everyone, welcome to the second season of Petsmania Tales and Trails, the show where we explore beautiful places, inspiring people, and heartfelt stories. Today we have somebody very extraordinary, somebody whose gift does not go beyond behavior or observation, somebody who can talk to animals. We would like to welcome Vyoma to the show, who's not only good in these psychic abilities, but also a very good animal communicator. Welcome to the show, Vyoma. Thank you so much, Sonakshi. Thank you so much for having me here. It feels absolutely amazing, so wonderful that I am here at Pedzimania Tales and Trails podcast, amplifying the work I do, that is healing animals at mental and emotional level through animal communication. So it feels absolutely amazing. Thank you once again. Thank you so much. Let's start with your journey, Mama. When do you think you realized that you have some special abilities? First of all, becoming an animal communicator was never a part of the plan. I had a plan that corporate career, college, what everybody thinks about themselves. But I think it was meant to be. Sonakshi, if I have to give credit to someone, someone because of whom I'm here, doing what I was supposed to do and living my purpose, I think it's my soul dog Google, who crossed the Rainbow Bridge this week itself. I think it's all him. If I have to just tell you a very small story of how this everything started, and how we both got closer, I'll just give you tell you a very small story. So I remember I was sitting in my mom's home in her backyard, and I was like very feeling very hopeless and feeling very lost and feeling very sad and depressed because there were things happening one by one. And I think this kind of time comes in everybody's life when you hit the all-time low. And when I was at that moment of my life, I was just sitting. There he was, Google, right, sitting right across me. And when I just looked at him and he just looked at him, and there was so much zeal, power, and confidence in his eyes. And he was telling me, ki, Vyoma, sab theek ho jayega. This too shall pass. एंड सोनाक्षी जब मैंने उसे देखा और उसके बाद जब मैंने उसको पूरी तरीके से देखा, I saw that he was bleeding from different parts of his body. So I looked at my mom and I said कि mom इसे क्या हुआ? So she was like बेटा इसे खुजली हो गई है और हमने इसका सारा इलाज करा लिया और ये ठीक ही नहीं हो रहा है. And that boy who was bleeding from all over his body, he was giving that confidence just by sitting right across the backyard. That was the point. Something changed in me, Sonakshi. I set aside all my problems. I rolled up my sleeves and I made it a point that I'm going to heal this boy. Day by day, I don't know, मुझे इतना peace मिलता था उसको थोड़ा 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 better देख के, that with his healing I started healing. And that's how a bond, it grew stronger day by day. And it's been a decade. I'm trying to do my bit for all the animals who come my way. um, and with that intent only, with that intent, that animal love grew, that I moved ahead towards animal welfare. And then I came across animal communication. मैंने काफी सारे courses किए, काफी पढ़ाई की. And I think this is something, animal communication is definitely a miracle that I have truly manifested. Apart from that, बचपन से ना एक चीज सिखाई गई थी कि घर पे दर पे कोई भी आए ना खाना मांगने के लिए, उसको खाली हाथ जाने मत देना. सो मेरे घर में इतने सारे एनिमल्स आते थे, काउज एंड गोट्स एंड डॉग्स एंड बर्ड्स एंड स्क्विरल्स, और हम सबको खाना खिलाते थे. पर आई यूज टू ऑलवेज थिंक कि यार ये तो कुछ ख्याली पुलाव में पका रही हूँ अपने दिमाग में. आई यूज टू ऑलवेज कीप इट एट द बैक बर्नर. But I did not know that this intuition is going to lead me where I am right To now. your profession and passion, I To must say. yes, my passion. And this is how all these things merged, and here I am. I am getting goosebumps because I'm sure जो लोग ये episode आज देखेंगे, animal communication is a taboo. People don't know about it Yes. unless I came to know in Chandigarh when I thankfully met you. So I wanted to understand. For me also, it wasn't taboo. Is a taboo. I'll not lie on that. कैसे समझाएं लोगों को what is animal communication and what happens during those sessions where you connect with the pets? Oh. So just to make things a little easier for you, I'll start with few basic examples. So Sonakshi, कभी आपने सोचा है कि I'm thinking of this person and all of a sudden that person calls you,
or enters that personal space and you're like, अरे अभी तो हम तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे, and you just entered this particular area, or you called me up. तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है, right? Or you're somewhere outside, let's say, and you know Muffy is waiting for you at home regardless of the time, and you know कि मुझे Muffy के पास वापस जाना है, Muffy मेरा wait कर रही है, and regardless of the time you go, किसी भी time पे आप पहुंचो घर पे, you will always find Muffy, she's waiting for you at the main entrance to give you a very hearty warm welcome. How does that happen? See, you broadcast a signal through your mind and the receiver receives it. Now I use this telepathy to connect with animals through mind, and I receive messages from them in the form of thoughts and feelings and images. Like, I can explain it to you one by one, like how I receive messages. But the moment I connect with an animal, I put an intent in the universe, and we are together in a bubble, which I call a soul chat room, and we are like talking, like the way we are talking right now. Okay, so when I receive message in the form of thoughts, it's like having a two-way conversation. जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, बस वो मेरे मन में चलती हैं बातें. So through those messages, I ask what is happening in the fur baby's mind, how are they feeling in their heart? Do they have any advice for their humans? Do they have any recommendations? You know, anything that can the the pet parents can do to make their life better. They even tell us the life mantras, and they're so beautiful life mantras that fur babies always share with us. So thoughts is one of the ways. Apart from that, I receive feelings. So when I say I receive feelings, their heart is aching, you know, if they're genuinely sad and they're traumatized, I will start feeling that pain in my heart. If I know they are depressed and they are anxious, and or you know they are turning aggressive because of some of the other incident that has happened in their life. Now the third way I receive messages is in the form of images, and they share those images with me. So you know, I'll get a single image or flashes of image. So ये तो कुछ basic methods हो गए. इसके अलावा I can hear sounds in the background. A lot of birds chirping. That means it's a part of a fur baby's regular morning routine. कि बहुत चिड़िया आके चहचहाएंगी, and you know that's how they start their morning. I do get a taste, and it's mostly pup cups or vanilla ice cream. And I know that you know a pup cup or you know vanilla ice cream or a curd is fur baby's favorite, because I get that taste in my mouth. I I smell. So smell से पता चलता है. There is also something known as knowing. Just to give you a very small, quick example, a song will come across my mind. So whenever I used to go and meet Google, whenever he used to fall sick, मैं अपनी मॉम के घर हमेशा भाग के जाती थी उसके लिए. एंड देन कुछ होता नहीं था, उसके पास बैठी रहती थी, एंड आई यूज्ड टू सिंग दिस सॉन्ग. आपने शायद से ये सॉन्ग सुना होगा कि फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए रास ना आया रहना दूर, क्या कीजिए. बर्फी का गाना है ये. तो ये गाना ना मैं उसके लिए गाती थी. नेक्स्ट डे, you know, of his passing and crossing the rainbow bridge, I was crying. And all of a sudden, Sonakshi, ये गाना मेरे background में बजने लगा. And I knew it was Google who was reminding me that, hey, I'm just around you. So, you know, these are the beautiful ways of receiving messages through all your senses, through knowing. So, this is how I receive messages. So, this is all about animal communication, how beautifully it works. And when I started making necklaces for these babies, इनके charms ढूंढ रही हूँ, इनके लिए beads ढूंढ रही हूँ. I learned so many things, and it was so meditative. मतलब even after having a very very busy life, that gave me a lot of meditation. ये meditative है बहुत. I cannot tell you वो जो I feel the necklaces, same when you're telling वो जो me that. necklaces हमने बनाए थे रात में, I had made necklace, and even Khushbu had contributed. No, इसलिए चंडीगढ़ को लाना खाना everything I had just. I didn't even ask her to pay even a single penny. हाँ. For me, she is special. कि भैया, you spent efforts on my thing. Absolutely. And it was Absolutely. selling off. हाँ, It was selling off. Then, अब जैसे when you sell online, same thing. People are like, पता नहीं क्या होगा, handmade है, पता नहीं खराब तो नहीं होगा. So people do have a different perspective there. Everything is handmade, ना? Everything is handmade. आप bows है stitched You by hand. won't believe, for me, it's like, you know, whenever I have to give anything to someone, like even I've got something very small for you, and that's handmade. Yeah, that's more precious. That's handmade because
and that has been made by my friend because she has her own sustainable brand. Magnets that you. No, it's actually made on jute. It's Ah. a sustainable material, and you can use it as a keychain or you can use it in anything. And I know because she started her own startup like almost 5 years ago, and she came up with this idea that I want to get into sustainable fashion. And मैं जो बनाऊंगी वो इतना unique बनाऊंगी ना that people will not find it anywhere, and that's the uniqueness about it. That will hold a very special place in their memory, in their wardrobe. So that's the beauty of handmade, yeah. And that's the beauty within us that we are thinking about that. हाँ. People sometimes don't see that. There is an emotion behind building a People thing. go behind those commercials, things. ad किसका अच्छा है, हाँ. promotion किसका अच्छा है, packaging किसकी. The people are crazy about packaging. They equate the value with the brand value. And people don't think so. One thing that I as a customer don't understand is मैं भी packaging के पीछे भागती हूँ. Who is paying for that packaging? I am paying for that packaging. Absolutely. If I take another product with less packaging, prices would be less, no? Oh, so you are just paying extra for extra packaging. But you're not ready to buy a handmade product that actually exists and people are putting efforts into it. And they are beautiful products. Beautiful. Like, you know, you're talking about the necklace. I remember आपने necklace खुशी को पहनाया था when I was at Pet Fed. And he was looking so pretty, and I think for the next so many days वो पहना रहा जब तक मैंने उसे बोला अब इसे दिवाली के लिए रख दो नहीं तो वैसे खराब कर दोगे because that was obviously that's handmade. That was so cute. वो उसके पूरे fur पे वो पूरा accentuate कर रहा था. He was looking so cute in that. And मैंने उसको बहुत प्यार से एक memory बना के रखी that this is handmade. You know, I am not going to find this on this any website or let's say any app or it can be replicated. Obviously people have started replicating it, that's okay, but at least I'm happy I brought something for them, so that matters a lot. Yes, product चलेगा नहीं चलेगा, but वो जो आपका confidence है ना किसी का कि I will not fail her, she will not fail me. अरे आपके प्रोडक्ट तो गूगल तक खेला है. I took that ball, so that's why and I took that ball and everything, all the things that I bought from you in Pet Fed, I took it to Bhopal. सो व्योमा, हमने इतने सारे आपके एबिलिटीज़ के बारे में जाना, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में जाना. इज़ देयर एनी स्पेशल और सरप्राइजिंग मोमेंट जो आप बताना चाहोगे कि व्हाइल हैविंग अ सेशन दिस वाज द मोस्ट इमोशनल वन आई हैड टू गो थ्रू, या ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ थी जो मुझे किसी पेट ने बताई? ये जो रेनबो ब्रिज के पहले का समय होता है एंड देन यू नो वंस दे क्रॉस ओवर एंड उसके बाद जो क्लोजर का होता है व्हेन द पेट पेरेंट्स आर स्टिल ग्रीविंग, आई थिंक ये सबसे ज्यादा इमोशनल सेशंस यही वाले होते हैं. तो इसमें एक सेशन मुझे एक ऐसा याद है जो मुझे हमेशा मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेगा, और वो है डेक्स्टर दी पग की स्टोरी. सो डेक्स्टर अपने फैमिली का चहीता बच्चा था, एकदम चहीता. एंड जब मेरी डेक्स्टर को मैंने कनेक्ट किया तो डेक्स्टर काफी कुछ लिविंग था, अपनी बॉडी में था. जैसे मैंने उससे कनेक्ट किया तो उसने मुझसे कहा व्योमा मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ. तो मुझे पता था कि उसकी किडनीज फेल हो रही हैं. आई वाज अवेयर ऑफ दैट. सो इमीडिएटली डेक्स्टर ने मुझे एक टनल दिखाया. टनल के आखिरी में एक डोर था एंड डोर से बहुत ब्राइट वाइट लाइट आ रही थी एंड ही वाज क्रॉसिंग दैट डोर. आई न्यू उसका मतलब क्या था. मैं इमीडिएटली रुक गई. मतलब मेरे लिए वो भी एक बहुत बड़ा सेटबैक था कि ये तो लाइक ही इज रेडी टू क्रॉस द रेनबो ब्रिज. बट तभी मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या तुम्हें अपनी बॉडी में रहना है डेक्स्टर, या तुम अपनी बॉडी छोड़ के जाना चाहते हो? सो उसने मुझसे क्या कहा पता है? उसने कहा मुझसे कि इट्स गोना हैपन टुडे, आज ही होगा. तो मैंने कहा क्या होगा डेक्स्टर? तो उसने बोला आज मैं अपनी बॉडी छोड़ दूंगा, बट जाने के पहले मेरी 3 लास्ट विशेस हैं जो मैं चाहता हूँ वो फुलफिल हो. एंड मैंने तो पहली बात तो उनको बताया नहीं कि वो आज रात को ही चला जाएगा. मैंने बस इतना उनको बहुत सटली बोला कि उसके पास कम टाइम है, और लास्ट विशेस टर्म भी यूज नहीं किया. मैंने बोला उसकी कुछ रिक्वेस्ट अगर आप पूरा कर दो तो. सो उसकी पहली रिक्वेस्ट थी कि वो अपनी माँ की गोद में बैठना चाहता था एक आखिरी बार, शॉल में रैप अप होके गार्डन में अपनी फेवरेट जगह पे. वो अपनी फेवरेट ट्रीट एक और बार खाना चाहता था. और वो चाहता था कि उसका जो फेवरेट प्लशी टॉय है वो उसके छोटे भाई ओरियो को चले जाए. ओरियो शिट्जू है. And I'm having tears now. and जैसे ही मैंने उसे बताया, उनको बताया, वो लोग बहुत रोए. मेरे लिए भी वो बहुत डिफिकल्ट मोमेंट था उनको संभालना. मैंने कहा आपको जितना रोना है रो, मैं हूँ.
I am there with you guys. Hmm. And वो रात को 3 बजे, 3 से 3:30 के बजे Hmm. he left his body. Now the next day when I Hmm. connected with Dexter again, इतनी प्यारी बात कही उसने मुझे, कहता व्योमा तुम्हारी एंट्री जो मेरे फाइनल मूवमेंट्स में थी, Hmm. इट वाज लिटरली लाइक अ चेरी ऑन टॉप ऑफ द केक. Hmm. सो थैंक यू. और अब मैं अपनी फैमिली से तो हमेशा कनेक्टेड हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे से भी हमेशा कनेक्टेड रहूंगा जहाँ रहूंगा. Hmm. सो ही इज स्टिल विथ मी. Hmm. ऐसी एक सिमिलर कहानी है बड की. Hmm. बड एक ग्रेट डेन था, तो मुझे नहीं पता था कि वो अपनी बॉडी उसी समय लीव कर रहा था. उसी समय, मतलब जब मैं उससे बात कर रही थी, वो अपनी बॉडी से उसकी आत्मा निकल रही थी बाहर. Hmm. मैंने वही सेम चीज देखी कि वो टनल से जा रहा है, एक वाइट डोर है, लेकिन इस बार ना बट अकेले नहीं था. Hmm. बट के साथ एक बहुत ही बुजुर्ग इंसान थे. देयर वाज एन ओल्ड जेंटलमैन विद हिम हु वाज एस्कॉर्टिंग हिम थ्रू दैट Tunnel. टनल. Hmm. Hmm. एंड जब मैंने उसकी मॉम से पूछा जिलियन से दैट जिलियन ये कौन थे, तो जिलियन ने बोला कि वो मेरे बॉयफ्रेंड के ग्रैंडफादर थे. Hmm. और जब वो जिंदा थे तो उन्होंने वादा किया था Hmm. कि अभी तो तुम बट का ध्यान रख रहे हो, लेकिन ऑन द अदर साइड इन द आफ्टर लाइफ मैं बट का ध्यान रखूंगा, और ये मेरा प्रॉमिस है. I have no feelings to say at the moment क्योंकि ये पता नहीं था दुनिया एग्जिस्ट करती है. हाँ. And for whoever will watch this episode, मुझे लगता है उनके लिए भी नया कुछ नया है, ये नया एंड इमोशनल है. वेरी इमोशनल. इन एवरी Yeah. टाइम मैं ऐसे सेशन से उठती हूँ Hmm. जहाँ मैं किसी को गुड बाय कर रही होती हूँ, जहाँ मैं पेरेंट्स को, ग्रीविंग पेरेंट्स को मैं संभाल रही रहती हूँ. मैं उनको एक सेफ स्पेस देती हूँ कि मैं हूँ, आपको जितना रोना है रो लो, मैं हूँ आपके लिए. Hmm. बट ये सब सेशंस के एंड में ना Hmm. देयर इज ऑलवेज पीस. हमेशा पीस ही मिला है मुझे. Hmm. मैंने हमेशा पीस में वो फर बेबी को देखा है, मैंने हमेशा वो पीस में वो पेरेंट्स को देखा है. और मुझे भी कहीं ना कहीं एक पीस मिला कि मैंने एक जाते हुए आत्मा की, ग्रीविंग पेरेंट्स की, सबकी हेल्प की. Hmm. सो आई थिंक यही सबसे इमोशनल सेशंस और मोमेंट्स हमेशा रहे हैं मेरे लिए. आई डोंट नो आप कैसे डील करते हैं क्योंकि आई एम श्योर ये कम्युनिकेशन पेरेंट्स के लिए को करना इज नॉट इजी. इट्स वेरी चैलेंजिंग. बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा. जो मैं बहुत क्यूरियस सा क्वेश्चन है. आपने बर्ड के बारे में बात की, आपने डेक्स्टर के बारे में बात की. दीज आर एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, राइट? तो क्या एनिमल्स डिफरेंट स्पीशीज की डिफरेंट लैंग्वेज होती है जैसे वी ह्यूमंस हैव डिफरेंट लैंग्वेज, और इज इट द सेम दैट यू, आई मीन सॉरी फॉर दिस क्यूरियस क्वेश्चन. ओके, सबकी सेम ही होती है, एक आत्मा की लैंग्वेज सेम ही होती है. सो जब मैं बोलती हूँ कि मैं किसी एनिमल से कनेक्ट कर रही हूँ, सो लैंग्वेज इज नेवर अ बैरियर. और मैं आपको बताऊँ, इस बारे में बात हो ही रही है, तो आई हैव स्पोकन टू एलिफेंट्स इन रेस्क्यू सेंचुरीज ऑफ थाईलैंड. मैंने हॉर्सेस से बात की है जो इंडोनेशिया के रिमोट आइलैंड्स में रहते हैं, जो रेस्क्यूड है. मैंने डॉग से बात की है जो बहुत पैम्पर्ड है और प्रैम में घूम रहे हैं इटली में. मैंने मंकी से बात की है जो मेरे बैकयार्ड में आ जाते हैं एवरी नाउ एंड देन. मैंने स्नेक से बात की है. सो मैंने सबसे बात की है, एंड सब सेम ही लैंग्वेज समझते हैं और वो मुझे पूरी तरीके से समझते हैं. जिस तरीके से हम अपने घर के बच्चों को जो प्यार देते हैं, वो थोड़ा प्यार ना हमें कम्युनिटी एनिमल्स को भी देना चाहिए. वो सेम लेवल ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग, चाहे कोई भी एनिमल हो, मैं ये नहीं कह रही कि डॉग हो, सबको देना चाहिए. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उनके अंदर भी वही सेम सोल है जो हमारे अंदर है. बस वही है कि वो किसी और बॉडी में और किसी और कंडीशन और परिस्थिति में पैदा हुए और हम किसी और कंडीशन में पैदा हुए. बेसिकली ह्यूमन बॉडी नहीं मिली, बस उन्हें ह्यूमन बॉडी नहीं मिली, या फिर वो इतने लकी नहीं थे कि हमारे बच्चों जैसे आज हम जैसे उनको सराखों पे रखते हैं वैसे. That's beautiful, Rama. मतलब I didn't know कि आपने snake से भी connect किया. I'll come on that later on now. Yes. So my question now that since that I've heard the whole journey, that has intrigued me कि अगर मैं मफ़ी का जैसे I'm very curious to know now कि अगर मैं मफ़ी का सेशन करती हूँ आपके साथ, so as a pet parent मैं जानना चाहूँगी कि what is that I'm missing. Although I love her, कोई कमी नहीं छोड़ूंगी. Neither I do it for any other furry babies. What is that one common thing that you've identified कि वो सेशंस में सारे पेट्स एक बात बोलते हैं जो हम ह्यूमंस मिस कर जाते हैं? सो इसको अगेन मैं छोटे से एक एग्जांपल से ही चालू करूंगी. हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी में होता है,
कि आपने देखा होगा कि हाँ। मफी आपको हर जगह फॉलो करती है, या हर जगह शी इज योर शैडो, ओके। हाँ एंड वो समझती है कि आज मेरी मम्मा खुश है, हाँ टुडे इज अ गुड डे एंड शी विल हाँ एंजॉय एंड हैव अ गुड टाइम विद यू, और आज मेरी मम्मा टेंस्ड है, स्ट्रेस्ड है, हाँ हाँ बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में, लाइफ हैपेंस। हाँ हाँ एंड उस टाइम पे मफी विल जस्ट कंफर्ट यू, विल जस्ट प्रोवाइड यू दैट कुशनिंग कि मैं हूँ एंड इट विल बी ऑल राइट। या या नाउ हाउ डज दैट हैपन? दैट ओनली हैपेंस बिकॉज हमारे जो पेट्स होते हैं, हमारे जो फर बेबीज होते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे आर हाईली हाईली इंट्यूटिव। हमें इस बिलीव से आउटग्रो करना है कि एक जानवर सिर्फ 50 शब्द सीख सकता है अपनी जिंदगी में, नहीं। एक जानवर एक अपनी जिंदगी में सब समझता है, वो आपको इन एंड आउट जानता है, और वो जानता है कि मुझे अपने ह्यूमन के लिए क्या करना है, ताकि बेस्ट से बेस्ट मैं अपने ह्यूमन के लिए क्या कर सकता हूँ, ताकि मैं उसे बेस्ट से बेस्ट वे में कंफर्ट कर सकूँ और खुश कर सकूँ और अपना प्यार दे सकूँ। सबसे बेसिक चीज तो यही होती है कि सबसे ज्यादा जो एनिमल्स कंसर्न होते हैं वो अपने से ज्यादा, खुद से ज्यादा वो अपने ह्यूमंस के लिए कंसर्न रहते हैं। सो इन शॉर्ट व्योमा, जो ऐसा मैं समझ पाई हूँ, आप में स्पेशल पावर्स हैं, सारे पॉ बेबीज में सारी स्पेशल पावर्स है। हम मुझसे भी ज्यादा, ओह okay. they are just next to gods. Yeah, सच they में are for sure. You Abilities हो ना हो, they are next to gods. And एक और क्वेश्चन दिमाग में व्योमा जो आता है वो ये है, how do you prepare yourself before these sessions? कितने घंटे के सेशन होते हैं and how do pet parents contact you? द सबसे इम्पोर्टेंट प्री रिक्विजिट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बिफोर आई स्टेप इनटू अ सेशन इज आई हैव टू एंटर अ सेशन विद अ वेरी न्यूट्रल स्टेट ऑफ एनर्जी। Okay. ना मैं ज्यादा नेगेटिव में हो सकती हूँ एंड ना मैं ज्यादा पॉजिटिव हो सकती हूँ। पॉजिटिव हो तो चलेगा ही, वो तो बहुत अच्छी बात है, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ गुड एनर्जी इन यू, बट नेगेटिव स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस एकदम नहीं होना चाहिए। Okay. एंड उसके अलावा दिस माई सराउंडिंग्स, सो माई सराउंडिंग्स ऑल्सो हैव टू बी कम्प्लीटली एट पीस। Apart from that, before connecting with any fur baby, I establish a connection with the god. And then after that, I put forward an intent that now I want to connect with Muffy. And now Muffy and me are in the same soul chat room और हम लोग बातें करें. We're in the safest bubble that I've created. So एक तो वो चीज़ हो गई. अब पेट पेरेंट्स जब मुझे रीच आउट करते हैं तो मैं उनसे यूजुअली यही कहती हूँ, सबसे एक बेसिक मेरी रिक्वेस्ट होती है कि जब आप मेरे पास आए, प्लीज कम विद एन ओपन माइंड एंड एन ओपन हार्ट। दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन कि पेट पेरेंट्स को कैसे पता चले, लाइक वी नो वेट के पास कब जाना है, चेकअप कराना है, हाउ डू पेट पेरेंट्स नो? क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत नया है, फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल डोंट नो अबाउट इट एंड आई एम होपिंग कि इस सेशन के थ्रू पीपल नो अबाउट इट। कैसे पता चले कि आप तक पहुंचना है, that the baby is trying to deliver a message? How do we know that? आपको पता होगा कि हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है जब हमारी बॉडी में कुछ ऑफ हो जाता है, एंड देन हमें खुद से हमारी गट फीलिंग आती है कि नाउ इट्स द टाइम फॉर मी टू गो एंड सी अ डॉक्टर, राइट? So there are different ways an animal signals their humans. Firstly, it's through their behavior. Okay. So when it comes to behavior, I'll tell you that you will suddenly see that there is a change in the way they communicate with you. Either they will become very vocal, बहुत ज़्यादा भौंकने लगेंगे, बहुत ज़्यादा भौंकने लगेंगे, and बहुत ज़्यादा म्याऊ करने लगेंगे और बहुत ज़्यादा साउंड करने लगेंगे, और they'll go absolutely quiet. और अगर ये दोनों भी चीज नहीं हुई ना तो वो सिर्फ आपको देखेंगे। मेरे एक सेशन में ये भी हुआ है जिसमें फर बेबी सिर्फ देखता ही रहता था, एंड दिस इज द रीजन व्हाई दे रीच्ड आउट टू मी कि व्योमा वो एक कोने से बैठ के सिर्फ हमें देखता रहता है, वो क्या बोलना चाहता है। इसके अलावा और भी दो चीजें होती हैं कि ईदर दे विल बिकम वेरी एंग्शियस और दे विल बिकम वेरी एग्रेसिव, बिकॉज कहीं ना कहीं से तो हमारे इमोशंस निकलेंगे ही बाहर। True. और देखिए खुशी के टाइम पे तो ना डॉक्टर की याद आती है ना एनिमल कम्युनिकेटर की है ना। तो ये जब ऐसा लगता है तो आपको एक एनिमल कम्युनिकेटर को रीच आउट करना चाहिए। हमारे यहाँ इंडिया में अब इतना एडवांस हो गया है साइंस, और हमारे वेटनरी डॉक्टर्स भी इतने एडवांस हो गए हैं दैट दे गिव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट्स टू आवर फर बेबीज। इवन दो कुछ चीजें हो सकती हैं जो डायग्नोसिस नहीं हुई है, कुछ अंडरलाइंग है जो बॉडी में चल रहा है जो आपको उसके मूड से पता चल रहा है, या फिर हो सकता है कि डॉक्टर ने डायग्नोसिस कर लिया है लेकिन आप चाहते हो कि यार मैं और क्या इसके लिए कर सकता हूँ ताकि ये कंफर्टेबल फील कर। लेकिन हम तो बात करके बता सकते हैं कि यार मूवी चला लेते हैं, कुछ फ्रेंड्स को घर में बुला लेते हैं, ये बच्चे कैसे बताएंगे?
So through these physical symptoms as well हम समझ सकते हैं कि now is the time to reach out to an animal communicator. सिंस यू ऑलरेडी स्पोक अबाउट इट व्योमा, ऐसा तो नहीं होता होगा कि सारे सेशंस बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स देते होंगे, एज इन हमेशा पॉजिटिव आंसर्स होंगे? कई सेशंस ऐसे भी होंगे जहाँ पे डॉग बहुत ट्रॉमा में होगा, या देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन दैट पॉज लाइफ. हुआ है ऐसा कि there was this pet parent. He's a retired Air Force pilot, and he reached out to me. उनने एक इंडी बेबी को रेस्क्यू किया था, एंड ही वाज लाइक युमा ही हैज सम प्रॉब्लम, मतलब मैं उसको रेस्क्यू कर चुका हूँ, घर का राजा बेटा है, घर के सराखों पे रखते हैं उसको, लेकिन ही स्टिल डजंट ट्रस्ट women. He has some problem with women. So when I connected with Pluto, I asked him that what is the reason behind this trauma. मैं आपको क्या बताऊं उस बच्चे ने मुझे क्या दिखाया. जब वो पैदा हुआ था, हाँ. तो वो किसी के घर के सामने रहता था, हाँ. एंड जिसके घर के सामने वो पैदा हुआ था, वहाँ की लेडी उसके ऊपर पानी फेंकती थी, लात मारती थी, पत्थर मारती थी उसे भगाने के लिए अपने घर के बाहर से. उसको उसकी माँ से अलग कर दिया था, और उसे कहीं चौरस्ते पे फेंक दिया था. एंड दिस इज द रीजन वाई वो कभी भी किसी विमेन पे ट्रस्ट नहीं कर सकता. Okay. So trauma is connected to women. सो ट्रॉमा इज कनेक्टेड. फिर मैंने उसे बहुत समझाया कि सी नॉट ऑल ह्यूमंस, ये हमारे साथ भी होता है ना कि हमें एक इंसान अगर गलत एक्सपीरियंस देके जाएगा तो हम सबको ही गलत समझेंगे. True. बट वी हैव टू गिव आवर लाइफ अ चांस अगेन. तो मैंने उसको वही चीज का कॉन्फिडेंस दिया प्लूटो को, एंड आई थिंक उसके बाद मुझे इतने लोगों का फोन आया कि व्योमा वी आर सीइंग अ डिफरेंट प्लूटो ऑल टुगेदर. मतलब मुझे बहुत लोगों का फोन आया, उनके थ्रू मुझे और सेशंस आए कि आपने उसको ठीक कर दिया. एंड जिस तरह प्रिपेयर सेशन से पहले प्रिपेयर करना होता होगा व्योमा, आफ्टर दीज सेशंस क्या फीलिंग होती है? Oh, after the session, I am completely drained. It's literally like writing a 3-hour question paper, जो हम लोग बचपन में करते थे. So I really have to take care of my energy. I have to rest a lot. I have to again be completely at peace with myself. And I have to be at peace knowing कि मैंने सेशन किया, और अब मुझे पता है कि कहीं ना कहीं वो बच्चा सुकून में है. कितने लंबे होते हैं सेशंस? सो इट डिपेंड्स. कभी कभी कुछ सेशंस लाइक 45-50 मिनट्स होते हैं, बट किसी पेरेंट्स को ऐसे किन्हीं को लगता है कि नहीं हमें प्रॉपर थॉरो सेशन कराना है, तो वो ऑलमोस्ट 2-2 घंटे तक जाते हैं. wherein I sit with the pet for 2 hours, almost 2 hours, and then 1 hour with the parents. Coming to the last segment, Google just passed already. Just crossed the Rainbow Bridge. Yeah. You mentioned आप spirit में भी connect करते हैं. So how was it connecting with Google? I'm sure easy नहीं होगा. So how did you connect? क्या बोला Google ने? Something. Okay, so this is going to be a little emotional. I know. I'm sorry for. I mean, just wanted to It's know okay. how It's okay. your thoughts. जब मैंने गूगल से कनेक्ट किया, there was this sudden wave of bliss जो मेरी पूरी बॉडी में आ गया. मतलब वो शब्दों से ज्यादा उसने वो इमीडिएटली वो फीलिंग मुझसे शेयर की. एंड मैं आपको वो कैसे समझाऊं, मतलब अगर मैं आपको रिलेट कराना चाहूँ ना, तो आपने कभी, आप बता रहे हैं जैसे आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, तो आप इमेजिन करिए कि आप बहुत महीनों से और सालों से प्लान कर रहे हो कि मुझे अपने फेवरेट गॉड के तीर्थ पे जाना है, एंड देन फाइनली यू आर देयर वन ऑन वन, यू जस्ट राइट देयर इन फ्रंट ऑफ योर फेवरेट गॉड, एंड आपकी बॉडी पूरी ब्लिस में है, आपके आंखों से आंसू बह रहे हैं, आपको पता है आप अपने भगवान से एक हो चुके हो, एंड फॉर those few seconds आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स वैनिश हो चुकी है, आपकी लाइफ की सारी दुख वैनिश हो चुके हैं, एंड यू आर इन कंप्लीट ब्लिस. वो फीलिंग में गूगल है, एंड आई कुड फील दैट इन माय बॉडी, बिकॉज मैं तो ग्रीव कर रही थी, बट जब वो फीलिंग आई तो मुझे पता था वो फीलिंग मेरी नहीं है, वो फीलिंग गूगल की थी जो मेरे साथ शेयर कर रहा था. तो आई इंस्टेंटली न्यू दैट ही इज इन कंप्लीट ब्लिस. नाउ द सेकंड थिंग दैट आई आस्क्ड गूगल वाज that गूगल, तुम्हारे लास्ट मोमेंट्स में मैं तुम्हारे साथ नहीं थी,
तो उसने बोला मुझसे कि तुम होती तो मैं जा भी नहीं पाता व्योमा, क्योंकि तुम जाने ही नहीं देती थी। जब बीमार होता था तुम आ जाती थी और मुझे ठीक कर देती Yeah. थी, और मुझे तो जाना था ना, Hmm. तो मैं तुम्हारे सामने नहीं जा सकता। And then he just turned at me and he just said that Vyoma, I'm okay. Hmm. I'm okay. Hmm. And that is the reason मैं सारे पेट पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बड़े सिंपल सिंपल चीजें करिए, आप सिंपल सिंपल चीजें करिए मफी के साथ, बट Hmm. यही सिंपल चीजें सबसे स्पेशल इनके लिए होंगी बन जाती मफी है. के लिए। Agreed. I mean, I see it as a healing tool too. So, do you think animal communication can be a way of healing? I mean, this is the last thing that I have in my mind because speaking, जितनी हमने experiences पे बात किया, at the end मुझे conclusion healing ही लगा. So do you think कि animal communication can be a way of healing? सो थ्रू एनिमल कम्युनिकेशन जो लव Hmm. जो जाता है, जो लव Hmm. होता है, जो गैप जो ब्रिज Hmm. होता है, Hmm. उससे हीलिंग बहुत फास्ट होती है Hmm. at physical level, mental level, and Hmm. emotional level. So yes, we do have like really good vets in our country who are doing such an amazing work, amazing job. Yeah. But I do know Hmm. that through animal communication and through other forms of energy healing, Hmm. Hmm. we can definitely make the lives of our pets better Hmm. and ready to heal them and heal Hmm. ourselves too somewhere. Hmm. I mean, Vyoma, I'll be very honest. आज का सेशन बहुत बहुत इमोशनल था. आई एम श्योर आपके लिए भी था एंड मेरे लिए भी उतना ही था. I think in two of the questions I definitely cried. Although I really want to thank you from the bottom of my heart for coming, talking to us, even though you just lost a soul right now. So I cannot be thankful enough. So thank you so much once again for Thank you coming to so us. much. I think मेरे अंदर जो आज strength आई है, Hmm. it's not me, it's Google. मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आ सकती थी। मैं इतने अच्छे से ये सेशन आपको बहुत जितने अच्छे से समझा सकती थी मैं समझा सकती थी, बट Yeah. उस लड़के ने मुझे सिर्फ 3 चीज़ें सिखाई, Hmm. स्ट्रेंथ, Hmm. कामनेस Hmm. Hmm. एंड मेरा पर्पस हमेशा मुझे रिमाइंड कराता था। तो आज भी उसने मुझे Hmm. वही रिमाइंड कराया कि व्योमा, कि आज Hmm. तुम्हें मैंने एक एनिमल लवर, एक एनिमल कम्युनिकेटर बना दिया है, उसको तुम्हें Hmm. कैरी फॉरवर्ड तो करना है। Hmm. सो True. So I'll just wrap up the show. And guys, if you want to reach out to Vyoma for any of your communications with your pets, please do reach out to her. We'll be sharing the details in the description below. Thank you so much.